رمضان راشن اللہ کی طرف سے اپنے ضرورت مند بندوں کے لیے تحفہ ہے، جس کی تقسیم کے دوران کسی قسم کی نمود و نمائش نہیں کی جائے گی۔ مرکزی چیئرمین مقصوم بی بی فاؤنڈیشن محمد محبوب راجپوت مقصوم بی بی فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ روز رمضان راشن اور سامان افطاری کی تقسیم شروع ہوئی۔ اس حوالے سے مرکزی چیئرمین محمد محبوب راجپوت نے بتایا کہ رمضان راشن اور افطاری کا سامان انتہائی رازداری سے ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات آسٹریلین ہائی کمشنر نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی سے۔ پاکستان میں تعینات آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاک نے وفد کے ہمراہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا اور صدر چیمبر آف کامرس اکرام الحق سمیت نائب صدر عمر خالد اور دیگر ممبران سیالکوٹ چیمبر سے ملاقات کی۔ صدر سیالکوٹ چیمبر اکرام الحق اور آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکس کے مابین ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے اور آسٹریلیا اور سیالکوٹ کے برآمدی شعبے کے درمیان تجارتی تعاون کو بڑھانے پر توجہ مرکوز کرنے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ معروف صنعت کار خواجہ عابد اور سابق صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس ماجد رضا بھٹا نے اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ آسٹریلیا کے مارکیٹ میں پاکستان میں تیار ہونے والی سپورٹس گڈ، کرکٹ گیئر، ساکر بال، ہارڈ بال اور بیس بال کی بہت زیادہ مانگ ہے، جس پر توجہ دے کر ملک کی ایکسپورٹ میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ سپورٹس انڈسٹری کو استحکام دیا جا سکتا ہے۔ صدر اکرام الحق اور نائب صدر عمر خالد نے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کو سیالکوٹ میں تیار ہونے والی مصنوعات کا تحفہ پیش کیا۔ شکیل سیٹھی، بیورو چیف، آن نیوز، سیالکوٹ۔ رمضان المبارک کی آمد پر ایس پی اقبال ٹاؤن کی قیادت میں شہداء پولیس کے خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھیے ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر کی یہ رپورٹ۔ رمضان المبارک کی آمد پر ایس پی اقبال ٹاؤن کی قیادت میں شہداء کے خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ ایس پی اقبال ٹاؤن اور سرکل افسران سمیت ایس ایچ اوز نے شہداء کے گھروں کی دہلیز پر راشن پہنچایا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی اقبال ٹاؤن کی شہید سب انسپیکٹر محمد ادریس، شہید کانسٹیبل اختر اور مختار احمد کے گھر آمد ہوئی۔ شہداء کی فیملی سے ملاقات کے دوران خیریت دریافت کی اور ہمیشہ ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائی۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کا کہنا ہے کہ شہداء پولیس کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء پولیس کی فیملیز کی ویلفیئر کا بھرپور خیال رکھا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عدنان بشیر کھوکر، آن نیوز، لاہور۔ پولیس کے جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایس پی سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا فیلڈ میں ان کے ساتھ موجود رہے۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے شاہدرہ چوک پر جوانوں کے ہمراہ افطاری کی رپورٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے کرائم رپورٹر عدنان بشیر کھوکر۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا نے جوانوں کے ہمراہ شاہدرہ چوک میں افطاری کی۔ اس موقع پر اے ایس پی شاہدرہ عثمان عزیز میر اور ایس ایچ او سمیت جوان موجود تھے۔ ایس پی سٹی قاضی علی رضا کا کہنا تھا کہ جوان روزے کی حالت میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ڈیوٹی دینے والے تمام افسران و اہلکاروں کے حوصلے بلند ہیں۔ ماتحت اہلکار و افسران کے ویلفیئر کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایس پی سٹی کا مزید کہنا تھا کہ ماہ رمضان کے دوران اہم مقامات سمیت مساجد کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ عوام الناس کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عدنان بشیر کھوکر، آن نیوز، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آن نیوز کے ساتھ میں ہوں من نظارہ۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ اوکاڑا سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق حکومت کو پیکا ایکٹ کی متنازع شقوں میں ترمیم کرنا ہوگی۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ بنیادی انسانی حقوق اور آئین پاکستان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آئین کی بحالی اور آزادی اظہار رائے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے زیر اہتمام اہل قلم کنونشن سے مقررین کا اظہار خیال۔ بلدیہ ہال اوکاڑا میں ہونے والے اہل قلم کنونشن سے ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر سید طاہر احمد شاہ، سیکرٹری جنرل عابد حسین مغل، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اوکاڑا چودھری جبار گجر، سینئر رہنما آر یو جے پاکستان توفیق احمد بٹ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات شہزاد نقوی، صوبائی صدر بلوچستان طاہر علی شاہ، صوبائی صدر ویسٹ پنجاب رانا خالد محمود، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب رضوان الحسن قریشی، جوائنٹ سیکرٹری شمالی پنجاب چودھری عطاء الرحمان، سیکرٹری اطلاعات شمالی پنجاب محسن قیوم شیخ، سیکرٹری اطلاعات ویسٹ پنجاب عرفان نوید گوری، ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی محمد اشفاق چودھری، ڈویژنل صدر ساہیوال عارف ممتاز بودھا، ضلعی صدر پاک پتن وقار فرید جگنو، ضلعی صدر ٹوبا ٹیک سنگھ آصف ندیم، ضلعی صدر اوکاڑا چودھری ظفر اقبال، رہنما مظفر گڑھ مغیث قریشی، صدر ڈی جوجے رانا سلیم اختر، ضلعی صدر پی ایم ایل نون خواتین ونگ مس سائمہ رشید، سابق صدور سٹی پریس کلب اوکاڑا محمد مظہر رشید چودھری اور احتشام جمیل شامی نے خطاب کیا۔ مقررین نے بات کرتے ہوئے حکومت کی صاف
सहाफ़ियों के लिए मौजूदा पॉलिसियों पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पिक एक्ट की ज़द में पहले भी इलाकाई सहाफ़त आती थी, अब भी मकामी इंतज़ामी सियासतदान इलाकाई सहाफ़त को पिक एक्ट की आड़ में इंतकाम का निशाना बनाएंगे। आइन पाकिस्तान और बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करने वाली पिका एक्ट की मतनाज़ा शकों में हुकूमत को फौरी तरमीम लाना पड़ेगी। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान आज़ादी इजहार राय के लिए अपनी जद्दोजहद हमेशा जारी रखेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत इलाकाई सहाफ़ियों को नज़रअंदाज करने का सिलसिला बंद करे। कन्वेंशन में ज़िला उकाड़ा और गिरदनवास से सैकड़ों इलाकाई सहाफ़ियों ने शिरकत की। कन्वेंशन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मौजूद हैं आबद गुल साहब और बहुत सारी शख्सियात, तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए तशरीफ लाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने कर्मकार दोस्तों को जो कि दूर दराज इलाकों से यहाँ पर तशरीफ लाए, तमाम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, आबद हुसैन मुगल साहब की क़यादत में रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से यहाँ पर दोस्त तशरीफ लाए और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के जितने भी प्रेस क्लब्स हैं उसमें तमाम छोटे बड़े शहर जो हैं, 3 हमारी तहसीलें हैं, वहाँ के लोग भी मौजूद हैं। मैं तमाम का तहे दिल से मशहूर हूँ कि तमाम दोस्त अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल कर यहाँ पर। उकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों की रफीक कॉलोनी और बस्ती शेख में रेवड़ी और पकौड़े बनाने वाले यूनिट्स पर कार्रवाइयाँ। जालसाजी पर रेवड़ी यूनिट के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसलाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। पकौड़े बनाने वाले यूनिट को 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। 45 किलो एक्सपायर्ड फूड आइटम तलब, 40 किलो जाली पैकिंग मटेरियल, 10 किलो गैर मियारी खुराक और मशीनरी जब्त कर ली गई। पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के गिर्द घेरा तंग। फूड सेफ्टी टीमों ने रफ़ी कॉलोनी और बस्ती शेख में रेवड़ी और पकौड़े बनाने वाली यूनिट्स पर कार्रवाइयाँ की। तफसीलात के मुताबिक रेवड़ी की जाली लेबलिंग और नाकस फूड कलर के इस्तेमाल पर FIR दर्ज कराई गई। इंस्पेक्शन के दौरान एक्सपायरी फूड कलर, चूरन और दीगर अशिया बरामद करके तल्फ कर दी गई। बगैर लेबलिंग के खुले पकौड़े पैक करके बाजार में फरोख्त करने पर प्रोडक्शन यूनिट को 60,000 रुपये जुर्माना किया गया। प्रोडक्शन की फ्रीजिंग के लिए रेसेंट ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मौका पर DG फूड मोहम्मद आसम जावेद का कहना था कि रमज़ान मुबारक में फूड सेफ्टी टीमें सहर अफ्तार फील्ड में मौजूद हैं। इनका मजीद कहना था कि रोजेदारों को मियारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए चेकिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सियालकोट में थाना रंगपुरा पुलिस की DPO फैसल शहजाद की हिदायत के मुताबिक और DSP सिटी सर्कल तारक महमूद ढूडी की निगरानी में जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। दर्जनों मनशियात फरोश, टिकट गैंग और पतंग फरोश गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। इस वक्त हमारे सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी थाना रंगपुरा में सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल कालू के साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं थाना रंगपुरा में और हमारे साथ मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर शाहिद इकबाल कालू। आइए हम इनसे जानते हैं माह फरवरी की कारकर्दगी रिपोर्ट। जी शाह साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह फरवरी जो है ये रिसेंट गुजरा, जिसमें शब बरात जैसा जो है वो आम एक हमारा इवेंट जो है वो भी इस्लामी इवेंट जो है वो भी गुजरा है, और जिसमें पता ही है कि ये हवाई फायरिंग आतिशबाजी जो है वो अक्सर होती है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से वो भी मैनेज किया है। और माह फरवरी में हमने जो है वो दीगर जो है तमाम के तमाम क्राइम है उनको डिटेक्ट किया है और पंगामा जो है उसको बिल्कुल जो है पतंगबाजी के हवाले से आप जो बच्चों के वालिदैन हैं जो घरों में सुन रहे हैं आपको, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? अजीब नाजरीन, ये मेरी आपसे जो वालिदैन हैं आपसे इल्तिजा है, मेरी दस्त बस्ता आपसे इस्तदा है कि ये बच्चे जो हैं आपके बच्चे हैं, ये जो जुर्म कर रहे हैं पतंगबाजी, इसमें आप बिल्कुल मुलव्वस हैं। तो खुदारा इनको पतंगबाजी जो है वो करने से रोके, क्योंकि पतंगबाजी की वजह से ये दाती डोर जो है वो आजकल यूज़ कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ बिजली का निज़ाम जो है वो ट्रिप कर रहा है, बल्कि मासूम जाने जो है बच्चों बड़ों की वो गर्दनें कट रही हैं। कई वाक़यात जो है वो हो चुके हैं। तो बिल्कुल अपने बच्चों को जो है ना वो पतंगबाजी से रोकें, स्कूली खेल से जो है ना वो उनको मना करें, अपने और दूसरे जो बच्चे जो है उनकी जो ज़िंदगी है उनको महफूज करें। जी, एक हमने 6 जो है वो राजन चोरों उनको
जो है वो मैनेज करके उनके स्पेयर पार्ट्स को उनके दूसरे मोटरसाइकिल में जो है शिफ्ट करना और मोटरसाइकिल प्लस स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर दूसरे शहरों में बैरून मंडी जो है वो उनका रास्ते थे उनका जाके सेल करना, ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म अमल था। इसको हमने गिरफ्तार किया है हमारी फौज में। इसमें से हमने नकदी जो है इनसे 10 लाख रुपये बरामद की है। 35 अदद हमने मोटरसाइकिल जो चोरी की है मसरूका की वो बरामद की है। 5 अदद इनसे पिस्टल रिकवर हुए हैं। 6-7 जो है वो इनसे मोबाइल पर रिकवर किए हैं। ये एक है जो हमने चोरों और डकैतों का पकड़ा है। शाफत, इसमें एक सवाल मेरा ये था कि जो स्नैचिंग में मोटरसाइकिल बरामद होती हैं, क्या ये मुतासर शख्स तक वापस जाती हैं? जी, पहले तो कुछ जो है ना वो डिपार्टमेंट का आपको पता है कि थोड़ी सी जिम्मेदाराना नहीं थी, लेकिन अब DPO साहब ने जो है ना DPO साहब को जनाब शहजाद साहब के तौर पर इसमें बिल्कुल नेगलिजेंसी जो है ना नहीं की जा रही। वो हमने जो मोटरसाइकिल हैं वो जो पकड़ी हैं वो कुछ कैंप की थी, हमने कैंप भिजवा दी हैं। मुरादपुर की थी वो मुरादपुर भिजवाई हैं। हम उनको चेक करते हैं, जो मोटरसाइकिल पकड़ते हैं उनका इंजन नंबर TC नंबर हम जो है ना वो कंप्यूटर में चेक करते हैं कि ये कहाँ किसकी है, कहाँ से चोरी हुई है, तो उसको फिर मुतलका थाना में ले जाते हैं, ताकि वो ऐसे ही सड़ने गलने के लिए जो है ना थाने में हम छोड़ देते हैं। पूरी जिम्मेदारी से हमने उनके मालकान को जो बकाया हमारी मोटरसाइकिल की चोरी हुई हमारे इलाका थाना रंगपुरा से, उनके मदईन को हम जो है ना वो वापस कर रहे हैं। समुद्र में कुछ हो गई हैं, कुछ जो है ना वो वापस कर रहे हैं। आपकी तैनाती चौका शहर के एक बहुत ही मसरूफ थाना में है, तो इस हवाले से आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो मंशियात फरोशी है उसको आपने इसका तला कमा करने के लिए क्या इक़दाम किए हैं? जी, मंशियात जो है ये मुआशरे का दस्तूर है। ये हमारा एक पक्का अज़म है कि हमने जो मुआशरे को जो है ना वो मंशियात जैसी दाना से पाक करना है। ये बिल्कुल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैं और मेरा भाई है साथ सलामत के ऐसे सलामत कराना सलामत के ऐसे हम दोनों ने दिन रात वर्क किया और ये हमारा टारगेट है कि मंशियात फरोशी जो है उसको रंगपुरा की हालत से ख़त्म कर देंगे। हमारा मुगला रंगपुरा लालपुरा में काफ़ी ज़्यादा मंशियात फरोशी होती थी, जिसको हमने इसका सही से इस्लाह का तज़ारा कर दिया है। हमने मई फरवरी में 4 FIR 9C की दी है, जिसमें 2200 ग्राम, 2400 ग्राम, 1340 ग्राम, 1700 ग्राम के कटने हैं और 7-8 कसूर से डॉक्टर उसामा मंसूर रिपोर्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर मोहम्मद ईसा खान ने माह फरवरी 2025 की हिदमत मराकज़ कसूर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। DPO ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में कहा है कि कसूर खिदमत मराकज़ ने माह फरवरी में 16,000 से ज़ायद अफराद को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की गई हैं, जिनमें 871 करैक्टर सर्टिफिकेट जारी किए गए, 7,907 अफराद की पुलिस जनरल वेरिफिकेशन की गई, 340 किरायादारान का इंदराज किया गया, 6,136 लर्निंग लाइसेंस जारी किए गए, 1 क्राइम रिपोर्ट जारी की गई, 16 गाड़ियों की व्हीकल वेरिफिकेशन की गई, 42 इंटरनेशनल लाइसेंस जारी किए गए, 693 लाइसेंस रेवनल किए गए, 105 गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई, 23 अफराद को FIA की कापियां फराहम की गई। टोटल 16,134 खिदमात फराहम की गई। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल नीला के करीब डाइवो बस और अटामिक एनर्जी कोस्टर के माबैन तसादम रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में नीला से कॉल मसूल हुई कि डाइवो बस और अटामिक एनर्जी की बस में तसादम से 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर करीबी की पॉइंट से एम्बुलेंस सर्विस और सेंट्रल स्टेशन से रेस्क्यू व्हीकल को जाए हादसे पर रवाना कर दिया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असेसमेंट के बाद जाए हादसा को महफूज बनाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और मरीजों को बाहिफाजत बाहर निकालने के बाद इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया की गई। हादसे में 35 साला वकार अली ड्राइवर ज़्यादा जख्मी हुआ, जबकि दूसरा मरीज मामूली जख्मी था। मरीजों को तिबी इमदाद देते हुए RHC बलकसर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज़ रफ्तारी और तेज़ बारिश होने की वजह से पेश आया। कराची से ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर कराची आबदा परवीन बाजखानी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर थाने बिन कासिम की हदूद में मुख्तार लशारी और पुराने चोरों का स्टील मिल से करोड़ों का तांबा। थाना बिन कासिम की हदूद में सब इंस्पेक्टर अल्लादीन नौशर की सरपरस्ती में चोरी जारी। स्टील मिल में चोरी और चौकीदार का गर्द चोर। तांबा, लोहा, कापर और कीमती मोटरें रोजाना की बुनियाद पर चोरी होने का इंकशाफ। चोरी का सामान बाकायदा कांटा किया जाता है। किलो के हिसाब से सब हिस्सादार अपना हिस्सा वसूल करते हैं। स्टील मिल से चोरी शुदा सामान की खरीदारी से कबाड़ियों की चांदी लग गई।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा के इलाके मानावाला से। हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गुजार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए दबंग क्राइम फाइटर SHO थाना मानावाला सैयद शाह फैसल गिलानी और उनके साथी सब इंस्पेक्टर वसीम शाह और ASI राना अब्दुल कयूम और थाना मानावाला की पूरी टीम ने दबंग कार्रवाई का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ दिन पहले भारी मिकदार में मंशियात पकड़ी। फिर नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए निजी शादी हॉल और जगह जगह नाके लगाकर 6 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। बादशाह हवालात में बंद करके मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए थाना मानावाला SHO सैयद शाह फैसल का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।